Okay, right, guys. Let's start. So today we will go over the part of the chapter 3 of history, wherein wherein we will cover the indigo movement plan, indigo revolt, indigo farming. सबसे पहले तो कितने लोगों ने इंडिगो देखा ही नहीं है कि इंडिगो को पता ही नहीं है, या जिन्होंने देखा वो बोलो सर मुझे पता है इंडिगो क्या होता है। सर मुझे पता है। पता है? ओके, कोई बंदा इसको नहीं पता इंडिगो क्या है यार? इंडिगो सबको पता होगा। इंडिगो जो कपड़ों के अंदर ना नील दिया जाता है उसको इंडिगो बोलते हैं। एक्चुअली में इसका नाम नील है हिंदी में। ये ब्लू कलर होता है। इट्स अ ब्लू कलर डाई। इट्स नेचुरल डाई, इट्स नॉट अ सिंथेटिक डाई। ब्लू कलर्ड डाई and it is natural. Okay, just to demonstrate to you what is the blue color look like of this indigo, I want to show you something which will immediately put to your mind what is a yeah, okay. So I'm sharing this now with you. I'm very sure you guys would have seen a peacock feather. Now in the peacock feather, see this color, you can see the this thing. See where I am pointing right now. This blue color, this striking blue color, this blue color is what is the original color of indigo. Right. So, but then why this was such a great deal? Why was this such a great deal? क्यों इतना हल्ला मचा हुआ है इसका? क्योंकि Sir, can I? चल मैं बताता हूँ, टाइम कम। चल ओके, टेल मी। Sir, because indigo was the royal color of the British family. ना ना, ऐसा कुछ नहीं। चल अच्छा उधर से पूछ ले, नहीं तो तेरे हमारे हाथ में यही रहता फिर। 18 से 19 सेंचुरी के अंदर दोस्तों कॉटन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत चल रही थी, पूरे वर्ल्ड में चल रही थी। और यूके तो इसका लीडर था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा जो आपका मैनचेस्टर सिटी है, मैनचेस्टर सिटी है, इट वाज बिल्ट ऑन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एंड टेक्सटाइल में यू नीड अ डाई which is vibrant and beautiful. Okay. Were there any substitute for this? Yes, there was a substitute. There was a substitute to the Indian dye, and it came from USA. I think the name of the place is South Carolina. South Carolina. They used to have a plant called woad, WOAD, and it had the same dye, same color dye. But there was a problem. This dye was not so bright. It was not so bright, less bright थी, वो वाइब्रेंसी नहीं थी उसके अंदर, वो चमक नहीं थी। जो पिकॉक फेदर के अंदर जो ब्लू होता है कलर, उसके अंदर जो फेदर के अंदर जो ब्यूटी है, जो वाइब्रेंस है, वो शाइन है, वो नहीं थी। तो दिस वाज लेस वाइब्रेंट। तो जो रॉयल लोग जो थे, रिच लोग थे, दे वांटेड ओनली इंडियन डाई। सो इंडियन डाई वाज इन डिमांड। Indian dye had huge demand. And which was the country which had the demand? China. चाइना में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। यूरोप, एंटायर यूरोप, फ्रांस इंक्लूडेड, एंड यूएसए। Now, when in the 18th, 19th century this happens, Britishers were very calculative, business-minded people. So there were many people in London who came to know about the indigo plantation of India. They packed their bags and came to India. बोलो चलो, and these guys were known as planters. So these were kind of investors who came to India. They took land on hire and started doing the indigo plantation. Now that is not problematic to anybody. That is not problematic to anybody.
And then where is the problem then? Okay, I'll tell you where is the problem. So in 18th century, roughly you can say the period was 1750. Around no प्लासी की लड़ाई वड़ाई का जो टाइम उस टाइम का AD. So rich, or you can say investors, basically they had money there definitely to invest. Investors came to India और पर्पस क्या था? पर्पस take land on rent, hire labor, grow indigo, and then export to export, make tons of money. ये इनका पर्पस था भाई. Now this kind of cultivation of indigo had a name, and the name was called Nij. 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 Actually Nij आता है हिंदी वर्ड निजी से. निजी का मतलब हिंदी में होता है पर्सनल. तो निज कल्टीवेशन was this was niche cultivation, because the land belonged to investors, or planters is the better name for them. इनको planters बोलेंगे हम लोग. Planters साफ नहीं आया. Planters. Okay, because land belonged to planters. Now the problem came when it was realized that the niche plantation cannot provide the enough of indigo. So there was a shortfall in supply. Shortfall in supply. So what the planters decided, they came out with a trick. Planters found another way. Let us see what was that way and what was it called. So far so good. I don't think there is anything very technical about it. ठीक है ना? अब तक तो सही है सब? Yes. Okay. So niche plantation का क्वेश्चन आता है कई बार. वो आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है कि निज प्लांटेशन क्या है. लैंड रेंट पे लेंगे, लेबर हायर करेंगे और इंडिगो ग्रो करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएंगे. ये है निज प्लांटेशन. ऑलराइट. नाउ व्हाट हैपेंस, सी. हम लोगों ने एक वर्ड डिस्कस किया था, मैंने तुम लोगों से डिस्कस किया था वो वर्ड. मैं उसको बोर्ड पे लिख रहा हूं, मुझे ना चैट बॉक्स में बताओ. What is the meaning of this word? RYOT, रयोत. क्या मतलब है इसका? हाँ जी, चैट बॉक्स. What is the meaning of रयोत? क्या लिखते किसको पता? हाँ, कल ही हम तो पढ़ा था जब रयोतवारी सिस्टम था. रयोतवारी सिस्टम जो कि थॉमस मुनरो ने लॉन्च किया था साउथ इंडिया में, मद्रास में. उसमें हमने देखा था रयोत फार्मर को कहते हैं. फार्मर को, जो फार्मर है, या टेनेंट भी वर्ड यूज कर सकते हैं. क्या बात है ऋत्विक और हर्षिया, सिया, हमने तो किया था यार, ये अच्छे से समझाया था रयोत क्या होता है. तुम लोग पढ़ नहीं रहे क्या घर पे? हाँ भाई,
ऋत्विक, यार ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरी मेहनत बेकार जाएगी फिर, अगर तुम लोग अपना रिवाइज नहीं करोगे, वीडियो नहीं देखोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, फिर तो बेकार है यार अपना सारा मामला। रयोत का मतलब होता है फार्मर, टेनेंट भी बोल सकते हैं उसको, कहीं कहीं वो टेनेंट भी था, जब वो दूसरे से जमीन लेके काम कर रहा था तो उसको टेनेंट बोला। टेनेंट, NANT. Okay. Now the second system was Rayot system. So the shortfall of supply indigo supply को पूरा करने के लिए नया सिस्टम खोजा गया, इसका नाम था रयोतवारी सिस्टम। रयोत सिस्टम, नॉट रयोतवारी, रयोत सिस्टम। What is happening in Rayot system? See, planters give advance to Rayot. Rayot signs a contract to provide or to use fixed part of his land to grow indigo and sell it to planter. तो तुम बोलोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, हमें तो प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। फिर प्रॉब्लम थी क्या? प्लांटर्स। प्रॉब्लम, नाउ दिस एडवांस जो है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ अ बेट। एनीबॉडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेट? BAIT? हाँ भाई, मैम सर किसी को यूज करना। बेट का मतलब होता है जो फिश के हुक में लगता है ना, कीड़ा, फिश हुक। जो लोग फिशिंग करते हैं उनको पता है इस वर्ड का मतलब बेट। बेट का मतलब होता है मछली को फंसाने के लिए जो कीड़ा यूज किया जाता है उसको बेट बोलते हैं। ये एडवांस जो था फिश को, इनको फार्मर्स को फंसाने के लिए, ये फिश के हुक फिश को फंसाने के लिए ये एक बेट थी। किसको फंसाने के लिए? रयत को फंसाने के लिए। प्रॉब्लम क्या थी? देखो दोस्तों, प्रॉब्लम्स क्या थी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। पहली बात, इंडिगो प्लांटेशन का प्रोसेस अभी बताऊंगा तुम लोगों को। इंडिगो फार्मिंग वाज बैक ब्रेकिंग वर्क। बैक ब्रेकिंग समझ रहे हो? कमर तोड़ काम है, इतना इसमें एफर्ट लगता है। बाइंग प्राइस is fixed at low level, at low rate by the planter. Third, indigo plant needs huge quantities of water, huge amount of water. वो एक प्रॉब्लम है, बारिश नहीं हुई तो खराब हो जाएगा पूरा। कैश क्रॉप, ये कैश क्रॉप है। रॉयल ये इंडिगो इज अ कैश क्रॉप, नॉट अ फूड क्रॉप। फोर्थली, डीप रूट्स होती हैं इसकी। डीप रूट्स, डिफिकल्ट टू पुल आउट। आफ्टर द हार्वेस्ट, तो प्रॉब्लम है कि नेक्स्ट
क्रॉप डिफिकल्ट। वो अंदर जब उसकी जड़ें लगी हुई हैं मिट्टी के अंदर, तो दिस लीड्स टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी। लॉस ऑफ फर्टिलिटी हो रही भैया, किसान को अगली बार राइस उगाने में दिक्कत हो रही है। लॉस ऑफ फर्टिलिटी मेजर कारण तो ये है, इसमें एक दो और जोड़ सकते हैं हम कि वो डेट ट्रैप में फंस गया, ये हो गया, वो हो गया, कहानी होगी उसकी। ओके, सो फार सो गुड गाइस। अर्णव, ऋत्विक, अर्षया, सिया, अभिनव, सब ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब भाई आगे थोड़ा बढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि इंडिगो प्लांटेशन होती कैसे, क्यों इतना बैक ब्रेकिंग है और क्या प्रॉब्लम्स है इसके। Next we see how the indigo farming done, process of indigo farming. Okay. पहले क्या होता है इसका, पहले तो नॉर्मल प्लॉइंग करते हैं अच्छे से। प्लॉइंग नीड्स टू बी गुड, थोड़ा सा भी कमी रह गया तो क्रॉप कम आएगी। दूसरा, सीड डाल दिए, सीड सोन, लॉट्स ऑफ वाटर needed for irrigation, lots of water needed for irrigation, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रॉब्लम अब से स्टार्ट होती है। आफ्टर 90 days plant is cut. Fourth, it is immersed in a tank. ऐसे टैंक के अंदर उसको सारे प्लांट्स को डाल देते थे और उनको या तो स्टोन से या वुडन पार्ट से दबा देते हैं नीचे ताकि वो पानी में दबा रहे। स्टोन हो सकता है, वुड के लॉग हो सकते हैं। आफ्टर ए वीक प्लांट्स आर थ्रोन आउट एंड उसके अंदर का जो डाई है, डाई ऑफ द प्लांट हैज मिक्स्ड विद वाटर। अब इस वाटर को जो फार्मर्स थे, अच्छा उसके अलावा क्या करते हैं, ये प्लांट्स आर थ्रोन आउट, इसके अलावा क्या करते थे, इमर्ज इन वाटर इन ए टैंक। साथ में उसमें क्या होता था, बंदे खड़े हो गए ना, वर्कर स्टैंड ऑन इट, सो आई एम जस्ट राइटिंग स्टैंड ऑन इट एंड मैश इट। मैश समझ को सबको पता है ना, उसको अंदर मलते रहते, मैश इट विद वाटर ताकि उसकी मैक्सिमम डाई निकल जाए रगड़ने से उसको, और मैक्सिमम डाई निकल जाए। उसके बाद प्लांट के अंदर मिक्सिंग होगी, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ केमिकल वगैरह डाल के, केमिकल प्लस लाइमस्टोन टाइप का डालते हैं इसके अंदर, लाइमस्टोन पाउडर टाइप का डालते हैं, मिक्स टू क्लीन द वाटर। वाटर के अंदर भी कुछ इंप्योरिटीज हैं, वो निकल गई अभी। साथ में वाटर मिक्स्ड विद डाई is heated. ओके, अब वाटर हीट किया तो वाटर एवेपोरेट हो गया, तो जो पेस्ट बना, पेस्ट इज रैप्ड इन
कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ क्यों? क्योंकि कॉटन क्लॉथ के अंदर ना थोड़ा छेद होता है। अब इसको धूप में रखेंगे ये लोग, पहले उसको प्रेस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, उसको प्रेस करेंगे। अब तक तो हमने क्या किया, फ्लाइंग कर दिया, सेविंग कर दिया, 90 दिन बाद निकाला, पानी के अंदर डुबो दिया, एक हफ्ते तक पानी के अंदर रखा, बंदे खड़े हो गए, चला चलू के उसको पूरा इंक निकाल दिया, पूरा उसका कलर। उसके बाद उठा के पेड़ पत्तों को तो फेंक दिया, तो पानी को थोड़ा साफ सुफ कर लिया केमिकल डाल के। और अभी वो जो पानी के अंदर मिली हुई डाई, अभी वाटर को हीट करना शुरू किया नीचे से आग लगा के, और वो धीरे धीरे पानी को उड़ा दिया। ना इसको कपड़े में डाल दिया पेस्ट को, और पेस्ट को इसको प्रेस कर देंगे। अभी ये जो कपड़े हैं इनको थोड़ा प्रेस कर देंगे, ऊपर से इनके कुछ वेट रख देंगे, स्टोन रख देंगे। नेक्स्ट इज, आई डोंट नो व्हाट वाज द पॉइंट। सर 9th। तो 9th, ओके, 9th था तो 10th होगा ना। ऑलराइट, नो सर 9th आएगा। आएगा, ओके। पैक्ड डाई is pressed with weight. 10. Extra water seeps out. Extra water seep out हो जाएगा। Cloth bundle is opened in sun for drying. Is opened and put in sunlight for drying. अब ये जो ड्राई होने के बाद बचा, what is left is cut into cakes, cut into indigo cakes. Cakes are sold. ये है पूरा प्रोसेस। अब ये बड़ा लंबा प्रोसेस है यार, किसान को बहुत मेहनत लगती थी इसमें, और साले पैसे देते नहीं थे, प्लांटर पैसे नहीं देते थे। उसको खरीदेंगे 2.5 रुपए किलो, 2.5 रुपीज पर केजी, और यूरोप में बेचेंगे 100 रुपीज पर केजी, 50 टाइम्स मोर दे विल सेल इट। फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। Now this is started in 1750 and finally in Bengal. In Bengal, it is finished in 1860. 110 years this went on, right? So let us see what all happened. So हुआ क्या दोस्तों, very soon farmers realized, that advance is a trap. Advance is a trap. They start to refuse accepting the trap, accepting advance. अब काम शुरू करते हैं प्लांटर्स अपना इंटिमिडेशन का, डराने का, मारने का, पीटने का। इंटिमिडेशन करना शुरू कर दिया बाय प्लांटर्स। क्या क्या ट्रिक अपनाई? बीटिंग, किडनैपिंग ऑफ देयर किड्स, फैमिली मेंबर्स। किसानों को मारना पीटना शुरू कर दिया। सब कहानी होने लगी, और धीरे 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 किसानों के अंदर गुस्सा बढ़ता गया। फार्मर्स एंग्री। नाउ तभी क्या हो गया, 1857 का रिवोल्ट हो गया, 1857 से रिवोल्ट। और अब हम जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अराउंड 1858 एडी।
दो बंगाली थे, एक का नाम था विष्णु विश्वास और एक का नाम था दिगंबर विश्वास। ये दोनों बंगाली थे और इन लोगों ने बहुत ज्यादा इस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया, उसको काफी स्प्रेड कर दिया, बहुत मारा अंग्रेजों ने, इनको पीटा वीटा सब किया। और इनकी हेल्प करने के लिए, ये तो सब विलेज में हो रहा है, क्यों सिया, ये सब तो गांव में हो रहा है। जो कैलकाटा के जो जेंटल पीपल थे, कैलकाटा का जो एजुकेटेड प्लॉट था, उनको जब पता चला कि इनके साथ इतना बुरा हाल हो रहा है, कैलकाटा एजुकेटेड प्लॉट, तो दे लेंड सपोर्ट टू दिस मूवमेंट। और प्राइमरी इन लोगों ने किया क्या, इन्होंने 3-4 चीजें की। पहली बात तो इन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर में कैंपेन चलाने शुरू कर दिए इसके खिलाफ। सेकंड, मास मीटिंग बुलानी शुरू कर दी, सभा करनी शुरू कर दी। तीसरा, इसके ऊपर उन्होंने आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए। और एक बड़ा फेमस काम हुआ, एक प्ले बना, उस प्ले का नाम था नील दर्पण, हिंदी में है नील दर्पण, इंग्लिश में लिखेंगे नील दर्पण, मतलब एक मिरर है। उस प्ले की हेल्प से अंग्रेजों को वो मिरर दिखाया गया कि सी व्हाट यू आर डूइंग। इसको प्ले को लिखने वाले जो बंदे थे, उनका नाम था दीन बंधु मित्रा। दीन बंधु मित्रा का ये प्ले इतना हिट हो गया कि जब ये चलता तो पुलिस आके लोगों को डंडे मारती थी कि देखना नहीं है। बैन कर दिया अंग्रेजों ने इसको प्ले को बैन कर दिया। इस प्ले को एक्चुअली क्या होता है, राइटर्स के अंदर एक वो ताकत होती है लोगों के सोए हुए इमोशंस को जगा देते। ये बैन हो गया भाई, बैंड। अब ये लहर इतनी बड़ी हो चुकी थी, इतनी ऊंची हो चुकी। अच्छा, तुम एक बात को समझना, ये प्लांटर्स जो थे, दे वर नॉट ब्रिटिश ऑफिशियल्स, दे वर द ट्रेडर्स ऑफ ब्रिटेन। एनीबडी कुड कम फ्रॉम ब्रिटेन एंड डू द प्लांटेशन। इनफैक्ट इंडिया के भी बहुत सारे लैंडलॉर्ड ये बाद में करने लगे थे प्लांटेशन करना। तो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और अब आगे देखते क्या माहौल बनता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 58-59। इफ यू रिमेंबर, रोयतवारी सिस्टम हम बहुत पुराना पढ़ रहे थे, रोयतवारी और वो सब तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 की बात थी, ये उसके बाद की बातें हैं। नाउ, सो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ द दिगंबर विश्वास एंड ये विष्णु विश्वास, एंड साथ में इन्होंने जो प्ले लिखा, इन्होंने मित्रा जी ने, दीनबंधु मित्रा। हाँ, दीनबंधु मित्रा ने जो प्ले लिखा, उससे एक क्रांति आई और उस क्रांति का नाम था द इंडिगो रिवोल्ट, 1959 टू 1960। तो क्या हो गया, फार्मर्स अटैक्ड प्लांटर्स, फैक्ट्रीज एंड हाउसेस। अब थोड़े दिन पहले ही तो 1947 18, यार ये मैं क्या करता रहता हूँ, थोड़े दिन पहले ही तो 1857 में बहुत सारे अंग्रेज बच्चे औरतें मारी गई थी। वो मेमोरी ताजा थी एकदम ब्रिटिशर्स के दिमाग में। तो ब्रिटिशर्स ने कहा ये गलत हो रहा है, वी विल अपॉइंट अ कमीशन। सो इन नवंबर 1860 इंडिगो कमीशन एक फॉर्म किया गया। कलकत्ता का डीएम भी उसका एक पार्ट था। और ऐसा कहते हैं कि कलकत्ता के डीएम ने एक स्टेटमेंट दिया था कि नॉट ए सिंगल चेस्ट छोटे बॉक्स को बोलते हैं, नॉट ए सिंगल चेस्ट ऑफ इंडिगो
arrives in Britain without the stains of Indian blood. Not a single chest of indigo arrives in Britain without stains of Indian blood. यानी जो भी यहाँ से indigo जा रहा है, हर पेटी के ऊपर हिंदुस्तानियों का खून लगा हुआ है. That was the statement. So in December in 1816, Commission gave a ruling दी थी इन्होंने. No farmer to be forced to do indigo farming. And in December 1860, indigo farming shut down in Bengal. So is this the end of the story of indigo farming in India? No, sir, it is not. When the Bengal movement was taking place, planters were very smart. What they did is they started looking for other places to do the plantation because trade was lucrative. पैसा बहुत था इसमें, काम बहुत पैसा कमा रहे थे वो लोग. So they didn't want to give up. So what happened then? They went to a place called Champaran in Bihar, and that area of Bihar. So indigo plantation shifts to Bihar, Champaran. Now here also the same suffering of farmers. So when Gandhiji landed in India in December of 1915, so first visit that he paid after going around the country, first movement that he lent his personality to, lent his force to, was called Champaran movement. He went to Champaran and he organized Mahatma Gandhi. He organized a satyagraha. And this was the first battle which Gandhi fought against the Britishers. Right. This is almost your end. This is called epilogue. जब book खत्म हो जाती है, तो book के बाद के 2-3 पन्नों में epilogue So लिखा when जाता है. did this Champaran movement happen? Okay, this happened in 1916. Gandhi came to India in December of 15. December 15 में आए थे. उसके बाद थोड़ा घूमे फिरे और 16 के अंदर चंपारण मूवमेंट किया. ठीक, चल, okay. Guys, I think I have already, without reading the notes, I have already given you what all was there. But the notes का फायदा ये होता है कि sometimes I might miss out something, so that gets sorted out now. All right. Jia, we will start with you. I'm just sharing the notes. Okay. Okay. Guys, अब बताओ थोड़ा, अब तो हिस्ट्री बोरिंग नहीं लग रही? No. हाँ भैया. No, sir. हाँ, अब तो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लग रही है. Yes, sir. ठीक है, एक मिनट, just give me a moment. I will share the notes with you guys. History. Expedition से करते हैं, chapter 3. All right. Sia, be ready after this. Harshya, सब लोग रेडी रहो. मैं सब कोशिश करूंगा सभी लोगों से रीडिंग करवाने की. यहाँ तक पढ़ लिया था दोस्तों हमने पीजेंट अपराइजिंग, ये कल्टीवेशन इंडिगो. या जी पढ़ो कल्टीवेशन इंडिगो.
Cultivation of indigo. Indigo, a crop cultivated in India, yielded a blue dye. It was in great demand among European cloth manufacturers. This was due to its brightness as compared to the other dyes like violet and blue dyes from a plant called woad. Indigo was in short supply मैंने in बताया the जो वोट था, guys, एक मिनट, जो वोट था वो दैट वाज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। वहां उसकी जो शाइन आती थी ना, शाइन थोड़ा डल टाइप की आती थी, इसीलिए उसको ज्यादा लोग पसंद करते नहीं थे, रिच लोग तो नहीं पसंद करते थे। हाँ चलो भाई। Indigo was in short supply in the European markets and therefore its price was very high. The British decided to increase the production of indigo in India and rake its profits by supplying it in Europe. Business ओके, agents began investing in indigo farming. They rented land and hired laborers for this. This was known as niche cultivation. निज, But मैंने this बताया निज उगाड़ का मतलब समझ लाना दोस्तों। निज होता है खुद का, पर्सनल, यानी उसमें किसान इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए उसको निज बोलते हैं। क्या? But this type of cultivation had many problems. The planters found it difficult to expand indigo cultivation as indigo needed large pieces of compact land for cultivation and most of the fertile land was already densely populated. Therefore, only 25% of indigo producing land was under this system. The rest was under another mode of cultivation known as the Ryot system, under which the planter forced the Ryots to sign a contract. Those who signed अंकित the क्लास नहीं contract अटेंड could करी आज आपने? avail of cash loans at low rate. जस्ट जी हाँ, एक मिनट, क्लास नहीं अटेंड करी? 4 to 5 क्लास थी आपकी, बताया नहीं था मैंने? बताया था ना, खुद बोला था कि सर विभोर सर क्लास में। चलो हो गया, हो गया। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। या जी हाँ। Delivered, the Ryots were sanctioned fresh loans. So cultivators remained caught in a vicious cycle. ओके, देखो ये कह रहे, दे आर सेइंग एज इफ द लोन वाज सैंक्शन लाइक द बैंक बूम चल रहे हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। तो पैसे थमाते थे उनके हाथ में जाके, अंग्रेजों के बंदे, उनको प्लांटर्स के बंदे, भाई पैसे पकड़ दो, बोल रहा मेरे को नहीं चाहिए, बोला नहीं तो पैसे पकड़, एडवांस ले। ठीक है, तो इट वाज दैट। सिया काइंडली कंटिन्यू प्रेजेंट अपराइजिंग। Yes, sir. Peasant uprising. Peasants were burdened with high taxation, low profits, and the gradual loss of self sustained lifestyle. This led to peasant rebellions. The failure of zamindars to pay the land revenues was also a factor contributing to these rebellions. Kisan Sabhas was set up which tried to represent the peasants and create awareness about their problems. ओके, किसान सभा बना ली सब लोगों ने अपनी मीटिंग करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सब आगे आगे बढ़ाने के लिए। आगे चलो, कंटिन्यू करो। Yes, sir. Indigo revolt in Bengal. The loans sanctioned to the peasants for indigo cultivation initially seemed reasonable, but they soon realized the strictness and the rigid, रिजिडिटी, rigidity रिजिडिटी of the समझ रहे हो? terms. रिजिडिटी ऑफ द टर्म्स ऑफ द लोन। अगर अगर प्लांटर ने बोला कि इतना तुझको देना ही देना मेरे को, तो वह मर जाए चाहे हमारी तरफ से, तो तू चलो देना ही पड़ा। तो बिल्कुल भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी कि भाई मौसम खराब हो गया, पानी नहीं मिला, उसके घर में डेथ होगी किसी की, कुछ भी हो गया, वो नहीं था। तो उसकी वजह से किसान बहुत परेशान थे। The labor put in by the indigo farmers did not did not match the price they got from the indigo planters. It was too slow. Secondly, they were unable to free themselves from the loans. Thirdly, the deep roots of the indigo plant made it impossible for the farmers to grow rice or any other crop as indigo plantation exhausted the soil. एग्जॉस्टेड द सॉइल, तो उससे फर्टिलिटी कम हो रही थी। तो शुरू में तो अच्छा लगा किसानों को, मजा आया यार, बढ़िया, एडवांस में पैसे कौन देता है यार, मिल रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं था कि ब्रिटिश कितने करेंगे। ऑल राइट, यस, ओके, अभिनव कैन यू कंटिन्यू फ्रॉम हियर? अभिनव, Yes, sir. पढ़ना बेटा। The point.
The outcome of all this was. Okay, sir. The outcome of this was that many peasants in Bengal refused to grow indigo in the early months of 1859. The situation became so oppressive that those worked Mhm. for indigo planters were Ostracized. Ostracized मतलब ostracized. जो किसान अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे ना, उनको बाकी किसानों ने अपनी सोसाइटी, उसको बोलते हुक्का पानी बंद कर देना, हिंदी में बोलते हैं, उससे लोगों ने बात करनी बंद कर दी, उसको अपनी सोसाइटी से दूर करना चाहिए, तू जा अंग्रेजों के लिए काम करता है, गलत है, ऑस्ट्रेसाइज हुआ। हाँ। The planters were not paid rent and the gomastas, that is record keepers, were beaten up. हम्म। The indigo farmers gained tremendous support from the intellectual within the city as well as the local zamindar who were angry because they were forced to lease out their land for a long period. Dina Badhu Mitra wrote Neel Darpan, a forceful play that depicted the real situation of indigo farmers and the highly exploitative nature of the planters. The British too got unnerved by such an agitation and हम्म। realized the consequences it would have their own government. ओके, ऋत्विक काइंडली कंटिन्यू फ्रॉम हियर। नाउ मैं तुम बताया इंडिगो कमीशन बना था, और उसके अंदर अंग्रेजों ने क्या बोला था, वो जो स्टेटमेंट मैंने दिया था वो बुक के अंदर तुम्हें मिलेगा। हाँ बोलो भाई। Yes, sir. The Indigo Commission was set up by the British in 1860. This commission reviewed the situation, and conducted an inquiry and provided the planters to be guilty. Tower, the district magistrate at the time of the Indigo Revolution, said not a case of indigo reached England without being stained with human blood. The commission criticized the intimidating methods used by the planters. Due to this, cultivators became free to choose whether they wanted to renew their contract. ओके, Indi- कंटिन्यू करना। Indigo production in Bengal came to a standstill, and the planters shifted their attention towards Bihar. Mahatma Gandhi visited Champaran to चंपारण, हाँ। हम्म। observe the condition of the indigo farmers during this time. This visit was the beginning of the Champaran movement against indigo cultivation and would eventually grow into nationwide movement against British dominance. ठीक है, हम चल, बस मेरी क्लास होने वाली, चलते हैं, जस्ट जस्ट मिनट। ओके, सो देखो यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब थोड़ी सी कुछ एक चीज के अंदर पॉइंट्स वही पढ़ लेते क्योंकि सिंस वी हैव अराउंड 5 मिनट्स, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब दो तीन पॉइंट थे, जैसे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की बात करी थी मैंने, वो उसमें कवर अभी आगे होएगा। और बिहार और पंजाब में क्या फर्क रहा, पंजाब के अंदर तो किसान रिच हो गए क्योंकि वहां जो पॉलिसी थी अंग्रेजों की, कॉटन कॉटन उगाना पड़ता था, कॉटन इंडिया वहां जाता था, वहां थोड़ी सिचुएशन रहती, कैनाल वगैरह बनाई, वहां किसानों को फायदा हुआ, farmers were benefited by the action of the English there or the British there, but things were not like that in Bihar and Bengal. Okay, right. Abhi, who was just reading just now? Ritvik, na? Yes, Yes, sir. Ritvik. Okay, okay, okay. अर्शिया, आप पढ़े यहाँ से इन्वेस्टिगेट से, दो तीन ये अच्छे पॉइंट्स हैं, कवर कर लेते हैं। क्या? Investigate. Karen said next to the war, famine and pestilence, the worst Pestilence thing क्या that होता can है? कीड़ा लगना, कीड़ा happen. लगना। The worst thing that can happen to agriculture is landslide. ओके, ये पढ़ो, कंपैरेटिव स्टडी। पंजाब केस स्टडी थोड़ा पढ़ लो। अर्शिया, कैन यू सी दिस? Arshia, what happened? I don't know what has happened. Hello, 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 hello.
ओके श्रीका आप कंटिन्यू करें, श्रीका आप कंटिन्यू करें, श्रीका प्लीज कंटिन्यू केस स्टडी. Yes, sir. Comparative study of Punjab, Bengal, and Bihar. Punjab. Punjab was annexed by Lord Dalhousie. It was a very fertile region irrigated by 5 rivers. The British took advantage of this and encouraged the cultivation of cotton as it was required for the industries in England. The British laid down an extensive network of canals in Punjab. This step increased productivity and peasants prospered. ओके नेक्स्ट व्हाट हैपेंड इन बंगाल बिहार, यही पढ़ दो, वहां उल्टा हुआ. Bihar and Bengal. The land revenue policies adopted by the British in the region of Bengal and Bihar were not peasant friendly. Not payment of land revenue allowed the zamindars to throw out peasants from their land. Due to these factors, peasants became debtors. Cultivation of cash crops led to commercialization of agriculture and crops like indigo. Farmers could no longer raise food crops. The result of this was that the farmers were no longer self-contained and were left in an impoverished, impoverished poverty, impoverished, condition. garibi. Okay. Arnav, can you read indigo cultivation in South Carolina? What? Let's Yes. see what is happening in the world at that time. Yeah. Indigo cultivation in South Carolina. The Pinckney family reached a British plantation in South Carolina, America in 1738. Eliza Lucas That time Pinckney, America was not independent; it was under Britishers. America got independence in the year 1785. Yeah. Eliza Lucas Pinckney, the daughter of the family, was determined to successfully grow some cash crops to pull the plantation out of debt. She asked for indigo seeds from her father and hoped that it would be the answer to their financial problems. In a few years, she became the first to successfully grow and process indigo in South Carolina. She then distributed the seeds to her neighbors in 1744, making it a new trade commodity for the colony. Not only that, she effectively put South Carolina on the map of British colonies that grew indigo. She became involved in slave trades as she required slaves in the entire process of sowing, reaping, and processing indigo. Like I mentioned earlier, this is a very labor intensive business. बहुत प्रोसेस, बहुत मेहनत लगती थी किसानों की, उसमें बैक ब्रेकिंग काम होता था, फिर उनको पैसे मिलते नहीं, इसलिए किसान जो है not happy with this. Okay, guys, any doubts, any questions? Tell me. I think we have finished a good chapter. It was interesting. It was informative, and I hope you had a sense of time passing. Now with each chapter, you'll have this sense of time passing. कि हम 1700 से शुरू करते, 1750, 93, 1800, slowly we will start coming towards the revolt, and उसके बाद हमारा बाकी भी part है, later part is also there, in which you have to learn about Quit India movement and all that. Jia was mentioning some chapter. Jia, what was the history chapter you mentioned? Sir, the uprising of 1857. Which is that chapter? ये chapter है कौन सा? Sir, the revolt of 1857. नहीं, ये chapter कौन से number का chapter पूछ रहा हूँ मैं? ये तो Sir, I पागल think है क्या? तुम्हारे स्कूल वाले पागल है क्या? अभी तो देखो रूलिंग कंट्री साइड हमने पढ़ा, अभी हमें पढ़ना चाहिए ट्राइबल एंड डीकूज पढ़ना चाहिए हमें, उसके बाद का एक चैप्टर छोड़ No, के दिया sir, बीच में. हमारे स्कूल में हुआ क्या था, हमारी एसएसटी की टीचर सिक हो गई थी, तो इसलिए हमारा सिलेबस पूरा बीच का छोड़ दिया और ने जंप कर दिया डायरेक्ट जो भी इस मंथ का सिलेबस है और जो पीए में आ रहा है. वो तो ब्रेक हो जाता है ना, चेंज. ये चैप्टर बनाए जाते हैं, इस हिसाब से बनाए जाते हैं चैप्टर के. टाइम शुड Yes. फ्लो, हिस्ट्री में टाइम शुड फ्लो ना. ये थोड़ी कि आज तुम्हें ये वाला पढ़ा दिया, 1800 का पढ़ा दिया, कल तुम्हें 1900 का पढ़ा दिया, बीच के 50 साल गायब कर दिए, वो तो कनेक्शन टूट जाता है. एनीवे, ठीक है, करेंगे फिर, बट मैं तो नहीं ऐसे कर पाऊंगा, मुझे तो 4th चैप्टर भी कराना पड़ेगा. तो तुम्हारा एग्जाम है Okay. कब से? 26 से. Yes, sir.
ओके तो ठीक है, आज है टाइम अपने पास, 7th है, हमारे पे 20 दिन है, हम कर लेंगे मैनेज। ठीक है, और दूसरा तू क्या बता रही थी, कौन सा वाला? सर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ किस में है ये? ज्योग्राफी में? सर ज्योग्राफी विच चैप्टर? 3rd। मिनरल पावर रिसोर्स। तेरी बुक कौन सी है? सर कोडवा, प्राइवेट हाँ, पब्लिशर। कोडवा बड़ी लंबी बहुत मोटी बुक है वो, तो डिटेल्ड है। मेरे को फिर कोडवा तो मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को, मेरे पास शायद है, करा देंगे कोई नहीं, ठीक है। और ओके सर। लास्ट में फिर या फिर ये हो सकता है यही करना पड़ेगा कि सिंस दैट चैप्टर नाउ नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन, व्हाट यू कैन डू इज you can go through the chapter जो भी इसके concepts, I'll give you some time, 20 minutes, half an hour, I'll clarify those concepts। ये भी करना कर सकते हैं अगर टाइम नहीं हुआ तो। ओके सर। ठीक है, क्योंकि मैथ्स वगैरह भी करना पड़ेगा। राइट गाइस, एनी डाउट्स? जिया, अर्नव, सिया, ऋत्विक, डाउट अभिनव? No, sir, no doubt. No, Okay. sir. नो डाउट। ऋत्विक नो डाउट, अभिनव नो डाउट, Sir, no doubt. ओके ठीक है। श्रिका कोई डाउट तो नहीं है? ऐसी मजे के साथ I पढ़ो, बस have a मेरी doubt, but I think Yeah. it would take a bit of time. So can I ask? कल कर, अगली क्लास में पूछा नहीं, नेक्स्ट क्लास। सर मेरा एसएसटी का पेपर 29th का है। हाँ ठीक, करा देंगे तब तक। अच्छा दोस्तों, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है यार, तुम्हारे लिए मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, इस तो वीडियो को देख लेना, इसको साथ में नोट्स अभी नहीं बना पाए तो बैठ जाओ, नोट्स भी तो भेज ही रहा हूँ मैं, बैठ के अपने नोट्स अपने साथ बना लो, कहानी सुनते जाओ। हो सकता है कुछ चीजें तुम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिखो जो मैंने बोली है, बोर्ड पे नहीं लिखी, तो दैट यू कैन राइट के सर ने ये बोला था। छोटे छोटे पॉइंट, नोट्स हमेशा शॉर्ट बनाने, लंबे नोट्स नहीं बनाने बोल, ऐसा होना चाहिए कैप्सूल की तरह, खाया मूंगफली से खाता है अपन ऐसे। इट शुड नॉट बी लाइक खिचड़ी, इतनी सारी सामने देख के बंदा घबरा जाए, नहीं, छोटे छोटे और उनको ग्रुप कर लो क्वेश्चन वाइज ऐसे। Right, then see you tomorrow, see you on Monday now. I'll organize your revision test and revision with the ma'am, and that time we'll start a new chapter. I'll discuss with you just after the class. Send me a message, what do you want to do after this? Okay, then I'll take a call on that. Chalo, okay guys, bye bye. Siya, Ritvik, Avinav, Arshia, Jia, bye bye. Bye, sir. Thank you, sir.